Okay. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। And me and my wife Shilpi, मैं और मेरी पत्नी शिल्पी यहाँ we पर है are very glad to be here और हम बहुत खुश हैं कि हम आपके बीच में आ सके। to see you all. आप सबको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई And sure we will have good fellowship after the service. और चर्च के बाद हम आपसे संगति करेंगे। And I'm glad like some MTC students are coming regularly. Like we have Ralph and maybe Lance, they are coming. और मैं बहुत खुश हूँ ये देख करके कि हमारे बीच में एमटीसी के स्टूडेंट्स आए हैं, लैंस है, अमित है। Like Ralph's Ralph, yeah. mom Shilpa was initially she was connected with Churchgate for a few years. रैल्फ की मम्मी शिल्पा यहाँ पर पहले आती थी। So it's joyful to see all of you. बहुत आनंद की बात है आप सबको देख करके। So it was a nice message by brother Joseph, because he himself was broken during the message. जोसेफ ने एक अच्छा संदेश दिया। Okay, I want to share some thoughts on anointing. मैं आपके साथ कुछ विचार देना चाहूंगा। Anointing. मैं अभिषेक के बारे में आपके सामने कुछ विचार पेश करना चाहूंगा। Like how important it is to be, for a believer to be walking in the Spirit, to be anointed. किस प्रकार से एक विश्वासी परमेश्वर के अभिषेक में आगे चल सकता है, Like how important it is for us. और ये कितना जरूरी है। And like many Christians don't have a right understanding of what anointing is. और बहुत से लोगों को अभिषेक के बारे में सही ज्ञान नहीं है। And we can sometimes have a good talk, lot of time with people, but not good communion if you're not anointed. हम लोगों से बहुत प्रकार की बातें कर सकते हैं, पर अगर हम पर अभिषेक ना हो तो वो बातों से हमें कुछ हल नहीं मिलता। Like if we can interpret word in different ways if you are not anointed. और हम वचन को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं अगर हम पर अभिषेक ना हो। We can have like a lot of knowledge but not the right spirit if you are not anointed. हमें बहुत ज्ञान हो सकता है, पर अगर हमारे पे अभिषेक ना हो तो सही ज्ञान, सही समझ नहीं होगी। And like in the sheep, the shepherds in Israel, like the sheep have many insects, some preys on their hair, skin. और जो भेड़ होती है उसके शरीर में बहुत से कीटाणु होते हैं। If it is not taken care well, they can go inside, and that can bring some diseases, or if it goes into the skin, it can even be fatal for some sheep. और ये कीटाणु का अगर भेड़ का ध्यान ना रखा जाए तो ये कीटाणु भेड़ के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उसकी जान भी ले सकते हैं। So the shepherd pours oil on the head of the sheep, so that these insects will not affect them much. और जो चरवाह होता है वो भेड़ के सर पर तेल मलता है ताकि उनके ऊपर वो कीटाणु कुछ हार्म ना कर, उनका कुछ नाश ना कर सके। So that's an act of anointing. Anointing is like maybe rubbing or pouring oil on a specific part or a place. और वो एक तरीके से अभिषेक को दिखाता है। अभिषेक का मतलब है कि किसी के सर पे तेल डालना या उसका अभिषेक करना। So like that oil which is poured by the shepherd is protecting the sheep. When God's anointing is there, there is a protection on us. जैसे चरवाहा भेड़ के सर पे तेल लगाता है तो भेड़ की वो सहायता मिलती है, वो संभली रहती है। उसी तरीके से परमेश्वर जब हमारा अभिषेक करता है तो हम उसके प्रोटेक्शन में रहते हैं। Like we have water which is mostly related with cleansing. The Bible, wherever water comes, like it cleanses. जब भी हमारे सामने पानी का जिक्र होता है तो पानी स्वच्छ करने, साफ करने को जताता है। Whereas oil is used for anointing. पर तेल है जो अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। And anointing can be done for a person or a place or for some things. और जो अभिषेक है वो किसी इंसान के लिए करा जा सकता है, किसी जगह के लिए करा जा सकता है या किसी चीज के लिए करा जा सकता है। And in the Old Testament we have three main offices for like before taking the office or doing the duties of that office, they have to be anointed. और बाइबल में तीन पोजीशंस के बारे में बताया गया है जिनका अभिषेक करना पड़ता है।
like a prophet, priest, and king. और वो है भविष्यद्वक्ता और राजा और जो परमेश्वर का सेवक है, Because God is using these people to do His work. क्योंकि परमेश्वर इन तीनों का इस्तेमाल करता है अपने कार्य को करने के लिए। Like prophet represents God to the people. The priest represents people to God. जो भविष्यद्वक्ता है वो परमेश्वर को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, और जो धार्मिक लीडर होता है वो लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के And आता है। if the king has the right relation with God, he does a good ruling of the people. और जब राजा परमेश्वर से सही संगति रखता है तो वो लोग प्रजा को अच्छे से देख सकता And है। we see like Elijah anointing Elisha in 1 Kings 19. हम देखते हैं कि एलाइजा ने एलाइशा को अभिषेक किया। Like we see prophet Samuel anointing David and Saul and David in 1 Samuel. और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सैमुअल दाऊद को अभिषेक करता है, सॉल का अभिषेक करता है। We see the priestly line from Aaron and his sons were anointed, like in Exodus 29:30. और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एरन और उनके बच्चों को भी अभिषेक करा गया था। So the basic meaning of anointing it, when something is some person or a thing is anointed, it is set apart for God's service. अभिषेक करने का मतलब है कि किसी चीज को हमने परमेश्वर के लिए अलग कर दिया गया है। It is separated from the normal. वो एक जो नॉर्मल चीजें होती हैं उनसे अलग हटा करके उसको परमेश्वर के लिए रखा So गया है। along with that, there is protection, there is empowerment. और उसके साथ हम देखते हैं कि एक तो हमारा प्रोटेक्शन होता है और उसके साथ साथ हमारा Like empowering equipment. हाँ उसी तरीके से हमारे को एक तरीके से ताकत बल मिलता है उस अभिषेक के द्वारा। And God blesses. So there is protection, there is an empowerment, and there is a blessing to enable that person to do his work. तो हम तीन चीजों के बारे में देखते हैं कि हमारे को पहले सहायता मिलती है, दूसरा मिलता है कि हम दृढ़ होते हैं, और तीसरी Third was blessing. और हमारे को हम आशीषित होते हैं। There are generally two types of anointing in the अभिषेक दो प्रकार के होते हैं old given in the Old Testament. पुराने नामे में इनका जिक्र है। There is a general anointing and there is a ceremonial anointing. तो एक सामान्य अभिषेक होता है और एक होता है कोई खास चीज के लिए अभिषेक करना। Like oil is used, when healing is required, or deliverance is required. जब किसी के लिए चंगाई की प्रार्थना करी जाती है तो हम तेल का इस्तेमाल करते हैं। Someone is so wounded, they apply oil for the wound to heal. और कई बार चोट वगैरह होती है उस पर तेल लगाया जाता है उसकी It is said चंगाई the के लिए। soldiers rub oil on their shields before war. और लिखा है कि जो सेना के लोग होते हैं वो अपने ढाल के ऊपर तेल लगाते हैं। And like when some people come into their house, people anoint them with oil as a sign of respect and hospitality. और इसी प्रकार से जब लोग हमारे घर में आते हैं तो कई बार उन पर तेल लगाया जाता है, उनको एक तरीके से आज्ञा नहीं, उनको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और आदर देते हैं। Or and also like when people die, like on the dead bodies, their oil is used to anoint them before burial. और इसी प्रकार से जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके ऊपर शरीर पे तेल लगाया जाता है, वो भी एक अभिषेक को प्रस्तुत So करता है। these are examples for like general anointing, and for ceremonial anointing is what we saw like for the offices. और हमने देखा ये जो अभिषेक था ये सामान्य अभिषेक था। इसी तरीके से जो खास अभिषेक था वो लोगों को दर्जा दिया जाता है, The prophet, the priest, and the king. भविष्यद्वक्ता, राजा या जो And the tabernacle and the things used for the service of God, sacrifice of God in the tabernacle, each and everything is anointed. इसी तरीके से परमेश्वर के तंबू में जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था उनका अभिषेक किया जाता था। And a special anointing oil is used for anointing them. और एक खास तेल बनाया जाता था अभिषेक करने के लिए। It is mentioned in Exodus 30, in the portion 22, in the verses 22 to 30. There are 5 ingredients in that anointing oil. और निर्गमन की किताब में 5 तरह के चीजों का जिक्र है
जिनको उस अभिषेक करने के तेल में मिलाया जाता था। And each of the ingredient represents, symbolizes something. और उसमें से जो 5 चीजों का मिश्रण किया जाता था, हर चीज का एक मतलब है। The first ingredient is myrrh, which signifies death. और पहला जो उसमें चीज होती है उसको मर बोलते हैं, जो मौत को दिखाता है। Like these things, if they are in our life, it shows an anointed life. No? और ये चीज अगर हमारे अंदर होती है तो वो एक अभिषेक जीवन दिखाती Like है। in our life, we need to have death to ourself. और हमारे जीवन में इसी तरीके से मौत, हमारे स्वयं जो हमारा सेल्फ है उसको हम मौत में लेके जाते हैं। My own will, desires and plans. और मेरी खुद की जो अभिलाषाएं हैं उसको हम क्रूस पे लेके जाते हैं। And second ingredient, cinnamon, it signifies love. और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है सिनेमन, जो प्रेम को दिखाता है। Like our love for God, our love for people. वो परमेश्वर से प्रेम और लोगों के लिए प्रेम। Then the third ingredient is cane, sugar, no, and it signifies truth. और तीसरी जो चीज है वो चीनी है, ये दिखाती है किस चीज को? Truth, सच्चाई। अच्छा, वो सच्चाई दिखाती है। So, Jesus came in grace and truth. No? परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई में आया। And truth binds all things. We see that in Ephesians 6. और जो सच्चाई है ये इन सब चीजों का मिश्रण करके उनको बांध के रखती है। And fourth ingredient is cassia. Cassia, it signifies grace. और चौथी चीज है उसको हम कैसिया बोलते हैं, ये अनुग्रह को दिखाती है। Okay. And olive oil, the fifth, the final ingredient, it signifies the Holy Spirit. और जो पांचवी चीज है वो है ऑलिव ऑयल, वो जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। So when we have death, love, truth, grace, and the Spirit in us, in our lives, we will manifest anointed lives. इसी तरीके से हमारे जीवन में ये 5 चीजें अगर होती हैं, मौत, प्रेम, सच्चाई, Grace and Holy Spirit. अनुग्रह और पवित्र आत्मा, तो ये एक अभिषेक जीवन को दिखाती है। Now, how is it in the New Testament? और नए अध्याय में ये किस तरीके से हमको So in दिखाया the है? Old Testament, when someone is to be anointed, they have to be physically anointed by oil, by pouring. पुराने अध्याय में जब किसी को अभिषेक किया जाता था तो ये उस पे तेल डाल करके उसका अभिषेक किया जाता But था। in the New Testament, like through the death and resurrection of Jesus, now when we believe in Jesus Christ, the Holy Spirit comes inside us and we are anointed through faith in Jesus Christ. नए अध्याय में जब कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है और उसके द्वारा हमारा अभिषेक होता है। Okay, we'll read this verse 1 Corinthians 12:13. Okay? 1 Corinthians 12:13. पहला कुरिन्थियों उसका पहला और 13वां अध्याय 13वां पद। So it says, for in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks or slaves or free, and all were made to drink of in one spirit. इस प्रकार से लिखा है कि फर्स्ट कोरिन्थियन 1:13 12:13 इस प्रकार से लिखा है पहला कोरिन्थियों 12:13 में, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह में होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। Like we can be people of a different regions or languages or color or race, but when we believe in Christ, the Holy Spirit anoints us and we become part of one body. हम अलग अलग जगह के अलग अलग बोलचाल रखने वाले अलग अलग रंग के लोग हो सकते हैं, पर जब हम आत्मा में आते हैं तो हम सब एक आत्मा के होते हैं। And in the Old Testament, the Holy Spirit came for a temporary time to do a specific work of God. It came and it went back after the work is done. और पुराने अध्याय में पवित्र आत्मा जब अभिषेक किया जाता था तो पवित्र आत्मा आके अपना कार्य करता था, पर वो फिर चला जाता था। But in the new, we have
permanent indwelling of the Holy Spirit in us. पर नए अध्याय में हम जो विश्वासी हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो आता है, तो वो हमेशा रहता है हमारे अंदर। Like in 1 Corinthians 3:16, it says, "Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?" So there is an indwelling of the Holy Spirit. पहला करंथियों 3:16 में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। Like the moment we believe in Jesus and we come into the body, we are already anointed. जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हम एक जगह पे आकर के जब हम एक दूसरे से संगति करते हैं, तो हम पर अभिषेक होता है। We have the Holy Spirit inside to guide and teach us. हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है जो हमारा मार्ग बनाता है और हमें सिखाता है। Sometimes people can think it is a mystery how to be anointed. और कई बार ये लोग सोच सकते हैं कि एक बहुत अद्भुत चीज है कि हमारा अभिषेक किस प्रकार से हो सकता Like है। sometimes people can think I have to do this big thing or I have to go this long place to know about anointing and to get anointed. और कई बार लोग इस तरीके का विचार रख सकते हैं, मुझे कुछ करना होगा या कहीं जाना होगा उस अभिषेक को पाने के लिए। But Bible says we all believers, each one is anointed through the faith in Jesus Christ. पर बाइबल हमें बताता है कि हम सब जितने विश्वासी हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, हम सबका अभिषेक हो चुका है। And we will be able to manifest it through faith and if we have a right relationship with God. और हम इस अभिषेक को दिखा सकेंगे जब हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता अच्छा होगा और ये अभिषेक लोग देख सकेंगे। The key is to have a right relationship with God. जो खास कारण है अभिषेक का, to have a right relationship with God. जो ये अभिषेक का होना परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता होने का कारण है। Like if I can know and believe in God, and if my life or heart is not clean, I cannot be used by God. I cannot be anointed for His work. तो जब मेरा दिल परमेश्वर पे पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता, तो मेरा अभिषेक नहीं हुआ होगा और मैं परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर पाऊंगा। Like when we make of some food or chai or coffee, we look for a clean vessel, what is already clean and right. Like, जब हम लोग चाय या कॉफी बनाते हैं तो हम एक साफ बर्तन को देखते हैं चाय को डालने के लिए। like if something is yet to be clean, I don't use that to make a new dish. तो कोई चीज अगर साफ नहीं हो तो उसको हम इस्तेमाल नहीं करते चाय डालने के So लिए। if we have a right relationship with God, it means we are clean and God can readily use us. और इसी प्रकार से जब हमारा रिश्ता यीशु मसीह पे के साथ सही होता है, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम पवित्र किए जाते हैं और तब परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर सकता है। You know, people have like really some crazy things. Some people do crazy things because they have a wrong understanding of anointing. और कई बार लोग बहुत अलग-अलग प्रकार से की चीजों को कर सकते हैं क्योंकि उनको अभिषेक की सही समझ नहीं है। There is a group of people who think that if I'm touching the grave of some holy man who already died, I can get anointed. कई बार लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मैं किसी पवित्र जन की कब्र को जाके छू लूं तो मुझे मेरा अभिषेक होगा। Some people believe that they do it, but it is wrong. It's not biblical. कई लोग ऐसा मानते हैं पर ये सही नहीं है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है। Some people do that as a business. They sell handkerchiefs, they sell oil, they sell some items. They say that I have prayed and it is anointed, it will heal you, it will clear your problems. और कई लोग इसको व्यापार में बदल देते हैं कि लोगों को ये सामग्री बेच करके कि ये मैं इस जगह से लाया हूँ, इस जगह का अभिषेक करके लेके आया हूँ, आप इस चीज को खरीदो। पर ये झूठ है। Like we don't need to go behind these things. हमें इन चीजों के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। We are already anointed. हम लोग सबका अभिषेक करा गया है। I don't need to go up a mountain to find about this. This is already written and given by God. मुझे पहाड़ पे जाकर के ये कोई चीज सीखने या समझने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ये बात मुझे वचन में पहले से लिख के बता दी। Wherever I am placed, I can have a personal relationship with God and I can do things and manifest anointed life to the people surrounding me. और जब मैं मेरा परमेश्वर से यीशु मसीह से मेरा रिलेशनशिप सही होता है तो वो अभिषेक लोगों को हम दिखा सकते हैं और लोग उसको देख सकते हैं। And finally, we will see one verse.
Luke 4:18. लूका 4:18 में हम एक वचन को देखेंगे। So this is already mentioned in the Old Testament in Isaiah 61:1. It is again referred here. इसका जिक्र आइज़ाया में भी करा गया है। Like we are anointed for a purpose. It's a big purpose, God's work. हमारा जो अभिषेक किया जाता है वो एक खास कारण के लिए करा So जाता in this verse, Jesus says, "The Spirit of the Lord is upon me." Luke 4:18. है। 4:18 इस प्रकार से लिखा है 18 में, लूका 4:18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। Yeah, so the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. And He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Like God has a plan, God has a work through us, and He has anointed us. परमेश्वर हमारे को इस्तेमाल करना चाहता है और उस इस्तेमाल करने के लिए हमारा अभिषेक करा गया है। The first main purpose is to share the good news with people. और उस अभिषेक करने का जो पहला कारण है वो ये है कि हम लोगों को जाके सुसमाचार सुना सकें। There are so many people who don't know God. बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को या उसके द्वारा उद्धार पाने के मार्ग को नहीं जानते हैं। Jesus himself says in Luke 19:10, "I came to seek and save the lost." और यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मैं पापियों को ढूंढने और उनको छुटकारा देने के लिए आया। And he tells us to go behind the lost. और वही वो हमसे कहता है कि जाओ, पापियों को जाओ और उसको छुटकारा चाहिए जो लोग अभी भी पाप के जीवन में हैं। And the word poor, it doesn't mean, the lack of money, or it means, they are like they're poor in knowledge or poor in the spirit. और इसमें जो गरीब होने का वर्णन करा गया है, ये पैसे की गरीबी नहीं है, पर ये आत्मिक गरीबी है कि उनको सही समझ नहीं है, परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं है। And then there is a sending. No, he has sent to proclaim liberty to the captives. और फिर इसमें लिखा है कि मुझे भेजा गया है कि जो लोग बंधुआई में हैं मैं उनको छुटकारा दे सकूं। Like the priest, prophet, and king is first anointed before he starts his office or the work. जो भविष्यद्वक्ता होता है, राजा होता है और याजक होता है, इसको पहले इसका अभिषेक किया जाता है। And for us to serve God, we have to first believe in Jesus Christ. We have indwelling in the Holy Spirit, and through His power and direction, we can do His work, His ministry. इसी प्रकार से हम जब इस्तेमाल किए जाने के योग्य बनते हैं, उससे पहले हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ता है, और जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमारा अभिषेक होता है, हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है और हम इस्तेमाल करने के लिए तैयार So anointing comes first, and then serving, or then sending for serving. पहला एक अभिषेक जीवन होता है, अभिषेक किया जाना पहले होता है और फिर इस्तेमाल किया जाना होता है। And there are so many people like proclaiming liberty to the captives. There are so many people who are in bondage. और बहुत से लोग हैं जो एक तरीके का बंधुआ होने का जीवन जी रहे हैं। Like they may look good outside with maybe branded clothes or car or many possessions in the world. वो लोग अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो एक जीवन जो है वो बंधुए का जीवन है। Like maybe they are addicted to wrong habits. हो सकता है वो लोग गलत चीजों के शौक में हो। Maybe they have hate in their heart or violence in their heart. हो सकता है उनके दिल में घृणा हो, लोगों के लिए भेदभाव या बुरा सोच हो। Like Satan has strongholds in their lives, in their minds. और शैतान उनको इस्तेमाल करता है। And we have the message which can liberate them. पर हमारे पास वो वचन और जो सुसमाचार है, ये जाके उस बंधुए जीवन से लोगों को छुटकारा दे सकता है। And to recovering of sight to the blind, like we know in 2 Corinthians 4:4 it says, no,
Satan has kept the people in the world deceptive or blinded. और बाइबल में लिखा है कि पाप के द्वारा लोग एक अंधेपन में आ गए हैं, और सुसमाचार जब पहुंचता है तो वो उस अंधेपन को दूर करता है। Like how many people reject when we give tracts? और कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से सुसमाचार बांटते हैं, ट्रैक देते हैं, और वो मना करके चले जाते For various reasons, and they are really blinded. हैं, और वो लोग कई कारण से इस चीज को मना करके जाते हैं, पर ये आत्मिक अंधापन है। But we do see some people eyes getting opened, and that gives great joy to us. और हम कई बार ये भी देखते हैं कि लोग बहुत खुशी से उस ट्रैक को लेते हैं और हमारे वचन को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, और हम उस खुशी को उनकी आंखों में देख सकते हैं। And to set liberty to those who are oppressed. और जो लोग दबे हुए हैं किसी तरीके के बोझ में, उनको छुटकारा देने के लिए मैं आया हूँ। Like we see in the world there is a great imbalance. हम दुनिया में देखते हैं एक तरीके का बहुत असमान लोगों का स्तर है इस पृथ्वी पे। Someone is so rich, someone is so poor. कई लोग बहुत अमीर हैं, कई लोग बहुत गरीब हैं। Someone is having very like their life is very easy. Someone is like every day is a big struggle. कई लोग अपने जीवन को बहुत आसानी से चला पा रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन में एक बहुत तरीके की जद्दोजहद करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। And people are oppressed or having this burden in various ways. और लोगों के ऊपर तरह तरह का बोझ है अलग अलग चीजों में। Like the sin being the prominent burden in each one of their lives. और पाप जो है ये सबसे बड़ा बोझ है हर एक के जीवन में। And we can this gospel shows that no, the sin can be, you can have liberty from the sin. और जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो लोगों को पाप के जीवन से छुटकारा मिलता है। Like the purpose of anointing. Now we saw about anointing, how anointing is done, and that each believer is anointed. And the main purpose of anointing is to share the gospel, to give sight to the blind, to give to liberate people who are in bondage and oppression. तो हम देखते हैं कि इस मुख्य कारण क्या है हमारा अभिषेक होने का। पहला है कि लोगों की आंखें खुले, हम उनको सुसमाचार दे सकें, ताकि वो बंधुआ के जीवन में पाप के बंधनों में जो है उनसे उनको छुटकारा मिल सके। कुछ लोग तरह तरह के बोझ में है, बोझ से उनको छुटकारा मिल सके। So we see like many people who follow God did that. Jesus did that. Many people who followed Jesus did that, and God wants us to do that, continue to do that. और परमेश्वर चाहता है कि जो चीजें यीशु मसीह ने करी उन चीजों को हम लोगों को दिखा सके, ताकि लोग परमेश्वर का एक जो विश्वासी जीवन है और परमेश्वर के कारण है, अभिषेक जीवन है, वो उसको देख सके। So like anointing it's not a mystery. We are all anointed. और अभिषेक कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है, पर हम सब जो विश्वास में यहाँ पर हैं, हम सबका अभिषेक हो चुका है। When we have a right relationship with God, when we have everyday devotional quiet time with God, we will be used by God. हम सबका परमेश्वर से एक रिश्ता है, हम सब अपने समय में प्रार्थना करते हैं, अपनी बाइबल का अभ्यास करते हैं, और हम इस्तेमाल किए जाते हैं फिर इस कार्य के लिए, अभिषेक जीवन के। And without anointing we cannot serve God fully. बिना अभिषेक जीवन के हम परमेश्वर का कार्य को पूरा नहीं कर सकते। And we don't need to go behind those things, some other person says, which is not biblical. और हम उन चीजों के पीछे नहीं जाना चाहते हैं और जाना नहीं चाहिए जिसके बारे में बहुत लोग बताते हैं कि मैंने ऐसा किया, पर हमें वो चीजें करना चाहिए जो वचन हमें बताता है। Amen. Amen. Praise. आमीन।